Hello, learners. Welcome to our channel All for Literature. Today we will be studying Macbeth by William Shakespeare. So, the full name of the play is The Tragedy of Macbeth, and in shortened form, it is also known as Macbeth. The first performance Macbeth की हुई थी in 1606. It was first published in the first folio of 1623, Shakespeare's first folio. Okay. Then it is Shakespeare's shortest tragedy. It's set in 11th century Scotland. Okay. It is also referred to as the Scottish play. If we look at the sources, Holinshed's Chronicles of England, Scotland and Ireland, it is the major source. Then there is King James's Daemonology. King James was ruling England at that time when Macbeth was written. Okay. Then there is George Buchanan's Rerum Scoticarum Historia. It was written in Latin. Then there is Hector Boyce's History of Scottish People. So these are the sources from which Shakespeare has taken his material, but the major source is Holinshed's Chronicles of England, Scotland and Ireland. Okay. Now we will look at the characters of the play. There is Duncan. He is the king of Scotland. Duncan has sons Malcolm and Donalbain. तो जो Malcolm है, he is the elder son and Donalbain is the younger son of Duncan. There are 3 witches also called Weird Sisters. Then the major character of the play is, we know, Macbeth. He is the general in King Duncan's army and he is Thane of Glamis. Okay, he is Thane of Glamis, and later on he also becomes Thane of Cawdor. There is Lady Macbeth. She is the wife of Macbeth. Then there is Banquo. Banquo is the general and friend of Macbeth. Banquo has a son, Fleance. Okay. Then another major character is Macduff. He is the Thane of Fife. Then there is a porter who is gatekeeper at Macbeth's home. Then there is Seward, general of English forces. There is Seaton, Macbeth's armourer and chief servant. There are Scottish Thanes. There is Ross, Lennox, Angus, Menteith, Caithness. Okay. अब हम summary देखेंगे. I hope the characters are clear. These are the major characters in the play. Act 1 की तरफ चलते हैं. We know कि यहाँ पे कितने acts हैं? 5 acts, जैसे कि शेक्सपियर के हर प्ले में हैं. सो मैकबेथ और जो बैंको हैं उनका एनकाउंटर होता है विचेस के साथ पहली बार. कहाँ पे हम देखेंगे क्या हो रहा है. थंडरिंग हो रही है, लाइटनिंग हो रही है और 3 विचेस डिसाइड करती हैं कि वो अब अपनी नेक्स्ट मीटिंग किसके साथ करेंगे, मैकबेथ के साथ. मैकबेथ जो कि थेन है क्लेमिस का, थेन लॉर्ड कह ली या थेन हम उनको भी बोलते थे. थेन्स वो होते हैं जिनके पास बहुत सारा लैंड होता है और जो कि किंग के लिए लड़ते हैं. ओके, दे फाइट फॉर द किंग के लिए लड़ते हैं एंड दे ओन लॉट ऑफ लैंड. तो थेन थी ग्लैमिस के. तो क्या होता है, सीन चेंज होता है और सोल्जर्स रिपोर्ट करते हैं किंग डंकन को. जो किंग डंकन है वो रहते हैं कासल ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, किंग डंकन लिव्स इन द कासल ऑफ फॉरेस. ओके, कहाँ पे ये सब जगहें स्कॉटलैंड में है. तो किंग डंकन कासल ऑफ फॉरेस में रहते हैं. कुछ सोल्जर्स आते हैं इनके पास. क्या रिपोर्ट लेके आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि जो बैंको एंड मैकबेथ जो उनकी आर्मी में जनरल्स हैं उन्होंने डिफीट कर दिया है एक रिबेलियन को. तो वो रिबेलियन किसने किया था? रिबेलियन किया था थेन ऑफ कॉडर ने अगेंस्ट किंग डंकन. और ये किसके
इस रिबेलियन में थेन ऑफ कॉर्डर के एलाइज कौन थे? नॉर्वे और आयरलैंड ने इनकी हेल्प की थी। तो इस रिबेलियन को डिफीट कर दिया है बैंको एंड मैकबेथ ने। ये न्यूज़ ये सोल्जर्स किंग डंकन को देते हैं। डंकन प्रेज करता है अपने किंग्समैन की फॉर ब्रेवरी एंड फाइटिंग प्रॉवस। तो ये इनको प्रेज करता है और ये अनाउंस करता है कि अब जो थेन ऑफ कॉर्डर का टाइटल है वो ट्रांसफ़र करके मैकबेथ को दिया जाएगा। वॉन्डरिंग ऑन हीथ, हीथ पे वॉन्डर करते हुए, हीथ होता है बैरन लैंड, ठीक है, जहाँ पे कोई भी वेजिटेशन नहीं होती। मैकबेथ एंड बैंको आर पजल्ड व्हेन द थ्री विचेस अपीयर, थ्री विचेस उनके सामने आ जाती हैं। क्या कह रही हैं वो? थीन ऑफ ग्लैमिस एंड थीन ऑफ कॉर्डर नेक्स्ट सेइंग ही शैल बी द किंग हेयर आफ्टर। व्हेन बैंको अपना, और ये किसके लिए बोल रहे हैं? मैकबेथ को, कि मैकबेथ थीन ऑफ ग्लैमिस है लेकिन अब वो थीन ऑफ कॉर्डर भी बन गया है और आगे जाके वो किंग भी बन जाएगा। ये बात मैकबेथ को नहीं पता कि उसको थीन ऑफ कॉर्डर बना दिया गया है। ओके, तो बैंको भी अपने फॉर्चून्स के, अपने फ्यूचर के बारे में पूछता है। तो विचेज उससे कहती हैं बैंको जो है ही विल फादर अ लाइन ऑफ किंग्स, मतलब जो बैंको है उसका सन जो है वो किंग बनेगा, बट बैंको नहीं बनेगा। ही विल फादर अ लाइन ऑफ किंग्स दो ही हिमसेल्फ विल नॉट बी वन, बट वो खुद नहीं बनेगा किंग। द विचेस वैनिश, और ये बोल के विचेस वहाँ से चली जाती हैं। एंड द थेन ऑफ रॉस अराइव्स, अब क्या होता है? थेन ऑफ रॉस वहाँ पे आते हैं और वो इन्फॉर्म करते हैं मैकबेथ और उसके न्यूली बेस्टोड टाइटल को, ठीक है। वो कहते हैं मैकबेथ को थेन ऑफ कॉर्डर। तो विचेस की जो फर्स्ट प्रोफेसी मतलब फुलफिल हो गई, मैकबेथ है वो थेन ऑफ कॉर्डर बन गया है। तो अब जो मैकबेथ है वो नए सपने देखने लगता है, एम्बिशंस देखने लगता है ऑफ बिकमिंग अ किंग। सो किंग डंकन वेलकम करते हैं और बहुत ही तारीफ़ करते हैं मैकबेथ एंड बैंको की, और वो बोलते हैं कि अब हम एक नाइट साथ में स्पेंड करेंगे मैकबेथ के कैसल में। मैकबेथ का जो कैसल है वो कहाँ पे है? इन्वर्नेस में। अब जो डंकन का बेटा है मैलकॉम, उसको अनाउंस कर दिया जाता है एज द ऑफिशियल हेयर टू थ्रोन। ओके, किसके ऑफिशियल हेयर? डंकन। वी नो मैलकम इज द एल्डर सन ऑफ डंकन। सो मैकबेथ क्या करता है? एक लेटर भेजता है अपनी वाइफ को, लेडी मैकबेथ को, और उस लेटर में वो बताता है विचेस की प्रोफेसी के बारे में। और जब लेडी मैकबेथ वो लेटर पढ़ती हैं तो वो बहुत ही डिटरमिन्ड हो जाती हैं, रेजोल्यूट हो जाती हैं कि वो कि उनके हस्बैंड को डंकन का मर्डर कर देना चाहिए इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द क्राउन, ताकि वो क्राउन ऑफ स्कॉटलैंड जो है वो मैकबेथ को मिल जाए। जब मैकबेथ इन्वर्नेस आते हैं वहाँ पे लेडी मैकबेथ परसुएट करती है मैकबेथ को कि वो किंग को मार दे उस रात। वो प्लान करते हैं कि जो डंकन के 2 अटेंडेंट्स हैं, चैम्बर अटेंडेंट्स हैं, उनको वो ड्रंक शराब पिलाएंगे एंड जब वो बेहोश हो जाएंगे उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग वो उनको फ्रेम कर देंगे फॉर द मर्डर ऑफ किंग। सो व्हाट हैपन्स इन नेक्स्ट एक्ट? उस रात, जिस रात किंग डंकन आए हैं इन्वर्नेस में, मैकबेथ के कैसल में, डिस्पाइट हिज डाउट्स एंड नंबर ऑफ सुपरनेचुरल ओमेंस, बहुत सारे सुपरनेचुरल ओमेंस, हेल्यूसिनेशंस होते हैं मैकबेथ को, जैसे कि एक ब्लड स्मियर्ड डैगर, खून से भरा हुआ डैगर उसको दिखता है घूमता हुआ। मैकबेथ गोज ऑफ स्टेज एंड स्टैब्स द स्लीपिंग डंकन। गोज ऑफ स्टेज मीन्स शेक्सपियर के टाइम पे जो प्ले होते थे वो स्टेज पे जब वो प्ले करते थे तो कुछ सीन्स वो लोग दिखाते नहीं थे एंड दे वुड स्टेज देम ऑफ स्टेज, मीन्स पर्दे के पीछे जाके वो सीन्स किए जाते थे और ऑडियंस को इन्फॉर्म किया जाता था कि ये चीज़ अभी हुई है। तो मैकबेथ ऑफ स्टेज जाते हैं, वहाँ पे वो स्लीपिंग डंकन को मार देते हैं। जब वो वापस आते हैं वो बहुत ही डरे हुए होते हैं एंड जो लेडी मैकबेथ है वो देखती हैं कि उनके हाथ में अभी भी वो ब्लडी डैगर है जिससे उन्होंने किंग डंकन का मर्डर किया है, जिसके लिए वो
उनको डांटती हैं और रिमाइंड कराती हैं उनको कि ये डैगर जो था ये उन्होंने किसके पास रखना था, स्लीपिंग सर्वेंट्स के पास, जिनको उन्होंने फ्रेम करना था फॉर द मर्डर। ओके, बट वो मैकबेथ उनके पास डैगर रखना भूल जाता है। उसके बाद वो डैगर लेके खुद जाती हैं और वो डंकन के चैम्बर में रख देती हैं। जब उसके बाद क्या होता है, उनको नॉकिंग सुनाई देती है कासल गेट पे। तो ये जो नॉकिंग है, इस पे एक वर्क लिखा है क्विंसी ने, नॉकिंग एट द गेट ऑफ मैकबेथ। दिस इज़ द नेम ऑफ द वर्क, सॉरी इट्स इन knocking at the gate in Macbeth. This is the name of the essay by Thomas de Quincey. तो ये essay है on Shakespearean criticism। तो ये ऐसे स्पेशली इस सीन को लेके लिखा गया है। तो जब ये मर्डर कर देता है जब किंग डंकन का मर्डर कर देते हैं मैकबेथ एंड उनकी वाइफ, तो वहाँ पे उनको एक नॉकिंग सुनाई देती है एट द कासल गेट। तो क्या होता है, अ ड्रंकन पोर्टर ओपन्स द गेट। सो ये जो सीन है जहाँ पे ये ओपन कर रहा है, इसको हम पोर्टर सीन भी बोलते हैं, पोर्टर सीन। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, एक ड्रंकन पोर्टर जो वहाँ पे ड्यूटी कर रहा था अपनी, वो गेट ओपन करता है और वो एडमिट करता है किसको, दो नोबल मैन अंदर आते हैं, लेनक्स एंड मैकडफ। मैकडफ को तो हमने देखा था। हु इज़ मैकडफ? मैकडफ इज़ द थेन ऑफ 5, वी नो दिस। ओके, तो जो थीन है 5 के, राइट, वो आते हैं वहाँ पे और वो बोलते हैं कि किंग मैकबेथ ने बोला था कि वो सुबह उनसे मिलेंगे, इसलिए वो वहाँ पे आए हैं। तो मैकडफ जो है डंकन के चैम्बर में जाते हैं। मैकबेथ उन्हें ग्रीट करते हैं और वो बताते हैं कि डंकन का चैम्बर उस तरफ है, आप वहाँ जाके उनसे मिल लीजिए। तो जब मैकडफ वहाँ जाते हैं तो ही री एंटर्स अनाउंसिंग द शॉक। तो क्या शॉक है? अनाउंसिंग विद शॉक डंकन्स मर्डर। और जो वापस आता है उसके चैम्बर में देखता है कि डंकन को मार दिया गया है, ही इज़ मर्डर्ड एंड ही इज़ इन शॉक एंड विद शॉक ही अनाउंस दैट डंकन हैज़ बीन मर्डर्ड। एंड मैकबेथ और लेनेक्स जो बाहर होते हैं वो रश करते हैं इनटू द चैम्बर जहाँ वो देखते हैं, ये भी ऑफ स्टेज किया गया है। और मैकबेथ उसके बाद क्या करते हैं, वो इम्पल्सिवली किसको मार देते हैं, उन्हीं दो सर्वेंट्स को जो डंकन के जिनको वो फ्रेम करने वाले थे फॉर द मर्डर ऑफ डंकन, वो वहाँ पे सोए होते हैं। दे वर ड्रंक दैट नाइट एंड वो उनको मैकबेथ उनको मार देता है ताकि वो प्रोफेस ना कर पाएँ अपनी इनोसेंस, ताकि वो कुछ बता ही ना पाएँ क्या हुआ है। तो वो वापस आता है और कन्फेस करता है बाकी नोबल्स को कि उसने उन सर्वेंट्स को मार दिया है। मैकबेथ ने उन सर्वेंट्स को इसलिए मारा क्योंकि वो किंग डंकन का मर्डर को अवेंज करना चाहता था, विच इज़ नॉट ट्रू। वाई ही किल्ड द सर्वेंट्स? बिकॉज ही वॉन्टेड टू प्रिवेंट देम फ्रॉम प्रोफेसिंग देयर इनोसेंस। ओके, वो नहीं चाहता था कि सच सामने आ जाए। सो डंकन के जो दो बेटे होते हैं, मैलकॉम एंड डोनाल्ड, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, दोनों भाग जाते हैं वहाँ से, वो इंग्लैंड चले जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जिसने डंकन को मरवाया है वो शायद उनका भी मर्डर करवा दें। मैकडफ ऐसा एक्सप्लेन करता है कि शायद उनके भागने की वजह ये है कि शायद उन्होंने ही खुद किंग डंकन का मर्डर करवाया है, तो उनको एक एज अ सस्पेक्ट्स देखा जाता है फॉर द मर्डर ऑफ किंग डंकन, मेन सस्पेक्ट। एंड जो मैकबेथ है वो थ्रोन अज्यूम कर लेता है और वो जो क्राउन है स्कॉटलैंड का मैकबेथ को मिल जाता है। ओके, तो वो न्यू किंग बन जाता है ऑफ स्कॉटलैंड। बैंको जो है उसको याद आता है विचेस की प्रोफेसी के बारे में। आपको पता है बिगनिंग में प्रोफेसी हुई थी जब, तो देयर वाज बैंको एंड मैकबेथ, एंड इन्हीं दो को प्रोफेसी पता है। तो मैकबेथ की जो फर्स्ट प्रोफेसी थी कि वो थेन ऑफ कॉर्डर बनेगा, वो तो स्टार्टिंग में ही फुलफिल हो गई थी। नाउ ही हैज़ बिकम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। तो ये जो सेकेंड प्रोफेसी है ये भी सच होगी। सो हमें पता है कि विचेस ने एक और प्रोफेसी की थी कि जो बैंको का सन है वो किंग बनेगा, राइट। तो ये प्रोफेसी का भी इन्होंने कुछ बताया नहीं है। तो ये दो प्रोफेसीज फुलफिल हो चुकी है। तो क्या होता है,
बैंको को याद आता है विचेस ने क्या प्रोफेसी की है अबाउट हिज ओन डिसेंडेंट्स, कि जो उसके बेटे हैं आने वाले आगे वो इनहेरिट करेंगे थ्रोन को। एंड अब वो सस्पिशियस है कि जो मैकबेथ है माइट बी डंकन्स ट्रू किलर, तो उसको ऐसा लगता है कि शायद मैकबेथ ने ही डंकन को मारा है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एक्ट। अब मैकबेथ तो सक्सेसफुल हो गया है अपने एम्बिशन में, बट फिर भी वो अनईजी है। क्यों? क्योंकि विचेस की नेक्स्ट प्रोफेसी थी कि जो बैंको का डिसेंडेंट होगा, बैंको का सन होगा, वो किंग बनेगा। तो मैकबेथ इनवाइट करता है बैंको को एक रॉयल बैंक्वेट में, जहाँ पे वो बैंको और उसके सन को, उसका नाम है फ्लियंस, उनको मारने का प्लान बनाता है। ओके, तो मैकबेथ अरेंज करता है 2 लोगों को मारने के लिए, बाद में एक वो थर्ड मर्डरर को भी ऐड कर देता है टू द प्लान टू किल बोथ बैंको एंड फ्लियंस ड्यूरिंग द एम्बुश। अब मर्डरर्स वहाँ पे एम्बुश करके बैठे हैं कासल के बाहर, तो जो मर्डरर्स हैं वो सक्सीड हो जाते हैं इन किलिंग बैंको, बट फ्लियंस जो है वहाँ से भाग जाता है। तो मैकबेथ बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो जाता है कि जो एयर है बैंको का वो अभी भी ज़िंदा है इस न्यूज़ से। ओके, बैंक्वेट में क्या होता है, मैकबेथ ने इनवाइट किया है बाकी लॉर्ड्स को, और वहाँ पे लेडी मैकबेथ हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। एंड मैकडफ ने वहाँ आने से रिफ्यूज़ कर दिया है, ही हैज़ रिफ्यूज टू कम देयर। ओके, तो उस बैंक्वेट में क्या होता है, बैंको का जो घोस्ट है वो वहाँ एंटर करता है, मैकबेथ को दिखता है, और वो कहाँ बैठा होता है, मैकबेथ की जगह, मैकबेथ की चेयर पे बैठा होता है। मैकबेथ रीव्स फेयरफुली, वो ही बिकम्स मैड, डिलीरियस, एंड ही ब्लैबर करने लगता है कुछ भी। तो सब गेस्ट भी स्टार्टल हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि जो घोस्ट है वो विजिबल होता है सिर्फ मैकबेथ को। बाकी साइड से पैनिक करते हैं। एंड तब तक उसके बाद क्या होता है, लेडी मैकबेथ वहाँ आती हैं और वो झूठ बोलती हैं कि उनके हस्बैंड को थोड़ी सी अफ्लिक्शन हो गई है। ये एक हार्मलेस लाइफ लॉन्ग इलनेस है जिसमें वो उनको ऐसी थोड़ी सी मैडनेस या दौरे पड़ते रहते हैं, काइंड ऑफ दौरे पड़ते हैं, ऐसा वो बताती हैं लोगों को। तो जो घोस्ट है वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद फिर आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे मैकबेथ जो है एंग्री हो जाता है और वो डर भी जाता है। इस टाइम लेडी मैकबेथ डिमांड करती है विजिटर्स को कि आप यहाँ से चले जाएं। एल्सवेयर, हेकेट, क्वीन ऑफ विचक्राफ्ट। अब क्या है, हम दूसरे सीन पर गए हैं जहाँ पे क्या होता है, हेकेट है जो कि क्वीन है ऑफ विचक्राफ्ट। वो स्कॉल्ड करती है, वो डांटती हैं बाकी 3 विचेस को कि उन्होंने जो वह हेकेट से बिना पूछे ये सब मिस्चिफ क्यों किया। तो जो हेकेट है इंस्ट्रक्ट करती है विचेस को कि नेक्स्ट टाइम मैकबेथ से जब आप बात करोगे तो उसको फॉल्स सेंस ऑफ सेफ्टी दोगे, ओवर कॉन्फिडेंस दोगे उसकी न्यू पोजीशन के बारे में। लेनक्स हैं वो रिवील करते हैं बाकी लॉर्ड से, वो डिस्कस कर रहे हैं अपने सस्पिशंस कि शायद जो मर्डर है वो मैकबेथ ने किया है, और वो मैकबेथ जो है एक मर्डरिंग ट्राइडेंट बन गया है वहाँ पे। एंड वो ये बात भी डिस्कस करते हैं कि जो मैकडफ है वो मैकबेथ के बैंक्वेट पे नहीं आया, एंड वो इंग्लैंड चला गया है टू फाइंड अदर एलाइज who will help them to take the Scottish throne back. Moving on to Act 4. अब जो मैकबेथ हैं वो विज़िट करते हैं 3 विचेस को, उनके पास जाते हैं और वो उनको बोलते हैं कि आप प्लीज़ बताइए अपनी प्रोफेसीज, आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो वो समन करती हैं हॉरिबल अपैरिशंस क्या होते हैं, घोस्ट्स भी कह सकते हैं आप, एंड एपरिशन हम बोल सकते हैं, अपीयरेंसेस को भी हम एपरिशन बोल सकते हैं, अपीयरेंसेस। सो वो वहाँ पे समन करते हैं, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कुछ ऐसी गोस्ट लाइक अपीयरेंसेस आती हैं, ईच ऑफ विच ऑफर्स फर्दर सुपरनैचुरल प्रोनाउंसमेंट्स। तो वो बताती हैं कि क्या होने वाला है। सबसे पहले एक आर्मर्ड हेड आता है जो उनको बताता है कि बी अवेयर ऑफ मैकडफ। ये फर्स्ट वार्निंग वो मैकबेथ को देते हैं कि मैकडफ से आपको थोड़ा बी अवेयर होकर रहना है, सतर्क रहना है।
सेकंड क्या होता है, एक ब्लडी चाइल्ड आता है जो उनको बताता है कि नो वन बॉर्न ऑफ वुमेन विल बी एबल टू हार्म हिम। ओके, कि जो भी जिसको भी एक वुमेन ने पैदा किया है वो उसको हार्म नहीं कर सकता। थर्डली क्राउन चाइल्ड आता है और होल्डिंग अ ट्री, एक वो कहता है कि मैकबेथ विल बी सेफ, तब तक सेफ रहेगा जब तक ग्रेट बर्नम वुड्स हैं, जो बर्नम फॉरेस्ट है वहाँ का, वो खुद चल के नहीं आएगा डंसिनेन हिल पे। तो डंसिनेन हिल पे क्या होता है, पैलेस होता है। डंसिनेन हिल पे क्या है, पैलेस है ऑफ मैकबेथ। तो ये 3 प्रोफेसीज होती हैं वहाँ पे। फर्स्ट वो प्रोनाउंसमेंट करते हैं कि बीवेयर ऑफ मैकडफ। सेकंड प्रोनाउंसमेंट इसकी नो वन born of woman will be able to harm him. And third one is that he is safe until the great Burnham Woods comes to Dunsinane Hill, कि जब तक खुद पूरा का पूरा जंगल चल के पैलेस तक नहीं आता वो नहीं मर सकता। तो मैकबेथ जो रिलीव हो जाता है ये सब प्रोफेसी सुन के, एंड उसको पता है कि जितने भी दुनिया में लोग हैं, जितने भी उसके एनिमीज़ हैं, सब वुमेन बॉर्न हैं, एंड एक फॉरेस्ट है वो कभी भी ट्रैवल नहीं कर सकता अक्रॉस द लैंड। तो ये सब बातें सुन के वो बहुत रिलीव हो जाता है और वापस चला जाता है। हाउएवर जो विचेस हैं वो कंजर करती हैं प्रोसेशन ऑफ 8 क्राउन। तो विचेस कंजर करती हैं एक और प्रोसेशन जिसमें 8 क्राउन किंग आते हैं, एंड लास्ट में एक किंग आता है जिसके हाथ में मिरर होता है और मिरर के अंदर और बहुत सारे किंग्स होते हैं। उसके बाद एक गोस्ट आता है बैंको का, वो पॉइंट कर रहा होता है प्रोसेशन की तरफ। तो मैकबेथ को ये रियलाइज़ होता है कि सब जो है बैंको के डिसेंडेंट्स हैं और ये सब जो है किंगशिप्स एक्वायर करेंगे न्यूमरस कंट्रीज़ में आफ्टर मैकबेथ। अब क्या होता है, अब उसको प्रोफेसीज पता चल गई हैं और उसको पता चल गया कि मैकबेथ को कोई नहीं मार सकता। तो वो ऑर्डर करता है डिसोबीडियंट मैकडफ के लिए, क्या ऑर्डर भेजता है कि वो उसके कासल को सीज़ कर दिया जाए। कहाँ पे है इनका कासल, 5 में। ओके, तो उनके कासल को सीज़ कर दिया जाए और उनको असासिन भेजता है जो स्लॉटर कर देते हैं उस कासल के इनहैबिटेंट्स को, इंक्लूडिंग मैकडफ की वाइफ को भी वो मरवा देता है एंड हिज यंग सन। मीनवाइल मैकडफ जो खुद इंग्लैंड में है वो प्रिंस मैलकॉम के साथ मीटिंग करता है और वो डिसाइड करते हैं डिस्कस करते हैं मैकबेथ के जो टिरनिकल रेजिम चल रहा है। मैलकॉम जो कि अब कॉशियस है फॉर एनी ट्रैप्स, तो वो कन्फेस करता है कि ही वुड बी अ टेरिबल लीडर इफ़ द क्राउन वर हैंडेड टू हिम। तो ही इज़ जस्ट प्रिटेंडिंग, और ये सब वो प्रिटेंशन कर रहा है ऐसा, बट दिस इज़ मीडिया, वो ये सब झूठ बोल रहा है ये देखने के लिए कि मैकडफ कैसे रिएक्ट करता है इस पर। तो मैकडफ शो करता है कि वो बहुत लॉयल है टू स्कॉटलैंड और देन एनी पर्टिकुलर लीडर, जिससे मैलकम जो है इम्प्रेस हो जाते हैं और वो रिवील करते हैं कि ये सब झूठ था, और वो कहते हैं कि मैकडफ ने उसका ट्रस्ट जीत लिया है। अब जो थेन है रॉस के वहाँ आते हैं और वो हॉरिबल न्यूज़ बताते हैं मैकडफ को कि कासल इज सरप्राइज योर वाइफ एंड बेब्स सैवेजली स्लॉटर। तो बताते हैं कि मैकबेथ ने वहाँ पे स्लॉटर करवा दिया है एंड जिसमें उनकी वाइफ एंड जो उनका बेबी था वो भी मर गए हैं। विद द न्यूज़ ऑफ हिज फैमिलीज मर्डर्स मैकडफ इज़ ग्रीफ स्ट्रिकन। ओके, बहुत दुखी होते हैं और वो प्रोवोक भी हो जाते हैं टू वेनेजेंस, कि अब वो बदला लेंगे। मैलकॉम उनको प्रोवोक करते हैं कि आपको इसके लिए बदला लेना चाहिए जो उन्होंने किया है, और वो एक्सप्लेन करते हैं कि उन्होंने एक आर्मी रेज की है विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश किंग एडवर्ड, और टुगेदर वो डिफीट करेंगे मैकबेथ को और अपना स्कॉटिश थ्रोन वापस ले लेंगे। जो रॉयल पैलेस है डंसिनेन में, वहाँ पे डॉक्टर एंड जेंटल वुमेन डिस्कस कर रहे हैं लेडी मैकबेथ की सडन फ्राइटनिंग हैबिट। अब उनको एक स्लीप वॉकिंग की आदत लग गई है लेडी मैकबेथ को, और लेडी मैकबेथ ट्रांस में एंटर करती हैं विद अ कैंडल इन हर हैंड, और वो बीमोन कर रही हैं एक्सप्रेसिंग सॉरो ओवर द रीसेंट मर्डर्स, एंड वो बहुत ट्राई करती है अपने हाथ धोने की। इमेजिनरी ब्लड स्टेन्स हैं उनके हाथ पे, उनको ऐसा दिखता है कि उनके हाथ में खून है जिसको वो साफ़ करने की कोशिश कर रही हैं, बट वो हो नहीं रहा।
मीनवाइल जो प्रिंस मैलकॉम की जो अलाइड फोर्सेस हैं वो प्लान करते हैं कि हम बर्नम वुड्स में मिलेंगे, वहाँ पे ज्वाइन करेंगे, जिनको सपोर्ट कर रहे हैं मैकडफ और बाकी थोड़े और स्कॉटिश थीम्स जो कि अलार्म हो गए हैं बाय मैकबथ्स रीसेंट बारबैरिटीज़। मैलकम जो क्या है, जब वहाँ पे कैंप बना लेते हैं बर्नम वुड्स में, वो ऑर्डर करते हैं सोल्जर्स की कि सब अपने आगे वाली एक ट्री कट कर लो ताकि हम कॉमोफ्लेज हो जाएं और उनको हमारे नंबर्स ना पता लग सके कि हमारे कितने सोल्जर्स हैं साथ में, और सब अपने आगे एक ट्री लेके कैरी करके चलेंगे। तो इससे क्या होता है कि जो बर्नम वुड्स हैं, बर्निंग फॉरेस्ट है, तो जब वो हर सोल्जर एक ट्री अपने आगे कैरी करके लेके जा रहा है तो ऐसा लगता है कि पूरा फॉरेस्ट मूव कर रहा है। और आपको पता है प्रोफेसी क्या थी कि जब बर्नम वुड्स चल के डंसिनेन आएंगे, डंसिनेन हिल पे, तब मैकबेथ की डेथ हो जाएगी। सो ये जो प्रोफेसी है यहाँ पे फुलफिल होती हमें दिख रही है। ओके, एज मैकबेथ रेडीज फॉर द अटैक, अब मैकबेथ को न्यूज़ मिल गई है और वो रेडी हो रहा है अटैक के लिए, तो उसको ये न्यूज़ मिलती है कि उसकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया है। तो कॉजिंग हिम टू डिलीवर डिस्पेयरिंग, वो क्या बोलता है, टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो, सॉलिलोक्वी, जिसमें वो बोलता है एक सॉलिलोक्वी वहाँ पे देता है। बट अभी भी उसको जो विचेस ने प्रोफेसी की थी कि वो नहीं मर सकता क्योंकि उसको वही मार सकता है जो मैन बॉर्न हुआ होगा, नॉट ऑफ अ वुमेन। ओके, तो उसको सब पता है कि जितने भी मैन हैं वो वुमेन के द्वारा ही बॉर्न किए जाते हैं। तो ही इज़ स्टिल एम्बोल्डन्ड बाय द विचेस प्रोफेसी। तब तक एक सर्वेंट रिपोर्ट करता है कि जो मैलकॉम की आर्मी है वो डंसिनेन की तरफ आ रही है इन द फॉर्म ऑफ मूविंग ट्रीज। जैसे ही इन्वेडर्स आते हैं कासल में तो मैकबथ का सामना होता है मैकडफ से, और मैकबथ उसको कहता है कि मुझे तुम डिफीट नहीं कर सकते बिकॉज यू आर वन ऑफ अ वुमन बॉर्न। बट मैकडफ रिवील करता है कि ही वॉज बॉर्न बाय सिजेरियन सेक्शन एंड दस डिड नॉट हैव अ नेचुरल चाइल्ड बर्थ। ओके, ही वॉज नॉट बॉर्न नेचुरली। तो क्या होता है, ड्यूअल होता है जिसमें मैकबेथ इज किल्ड ऑफ स्टेज एंड मैकडफ री एंटर्स विद मैकबेथ्स हेड। ओके, अपने हाथ में उसका सर लेके एंटर करता है वापस, और मैलकम डिस्कस करता है कि किस तरह से ऑर्डर अब रिस्टोर हो गया है स्कॉटलैंड में। और वो इम्प्लाई करता है कि जो लेडी मैकबेथ है उन्होंने सुसाइड किया है, और वो डिक्लेयर करता है कि उसकी जो कंट्री के थीम्स हैं उनको अब अर्ल्स बनाया जाएगा, और वो इनवाइट करता है सबको कि सब आओ अब उसकी कोरोनेशन सेरेमनी के लिए एट स्कोन। तो स्कोन इज़ द प्लेस जहाँ पे सबकी कोरोनेशन सेरेमनी होती है ऑफ किंग्स ऑफ स्कॉटलैंड, उनकी सेरेमनी यहाँ पे होती है। सो दिस वॉज द प्लॉट ऑफ द प्ले। नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्रिटिकल कॉमेंट्स ऑन मैकबेथ कि मैकबेथ पे क्या क्या क्रिटिक्स ने कॉमेंट किया है। सैमुअल जॉनसन कहते हैं कि मैकबेथ है a tragedy dependent upon enchantment to produce the chief events by assistance of supernatural agents। तो चीफ इवेंट्स जो हैं किसकी असिस्टेंस से हो रही, सुपरनेचुरल एजेंट्स की, और सुपरनेचुरल एजेंट्स कौन है, विच इज़ राइट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कोलरिज मैकबेथ अपील्स टू द पैशन वाया इमेजिनेशन। तो कोलरिज ने क्या किया है, एक कंपैरिजन किया है हैमलेट और मैकबेथ का। ओके, हैमलेट एंड मैकबेथ का उसने कंपैरिजन किया है एंड ही हैज साइटेड द डिफरेंसेस, उसने उसमें हमें बताए हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, तो ही सेज हिज मैकबेथ अपील्स टू पैशन वाया इमेजिनेशन whereas Hamlet appeals to the intellect. Okay, Coleridge's comment have particularly been cited for his comments on the Porter scene. तो पोर्टर सीन पे कोलरिज ने कमेंट किया है, वो कहता है hence the movement throughout is the most rapid of all Shakespeare's plays, and hence also with the exception of disgusting passage of the Porter, which I dare pledge myself to demonstrate to be an interpolation of actors, there is not, to the best of my remembrance, a single pun or play on words in the whole drama. तो वहाँ पे वो डिफेंड कर रहा है शेक्सपियर को ऑन द चार्जेस ऑफ पन, राइट, ऑन द चार्जेस ऑफ पन वो डिफेंड कर रहा है शेक्सपियर को पनिंग। और वो कहता है कि जो मैकबेथ में है एब्सेंस है पन्स की, वो कहता है कोई भी पन्स यूज़ नहीं किए गए हैं। ही ऑल्सो नोट्स एन एब्सेंस ऑफ कॉमेडी इवन ऑफ आयरनी।
ओके, तो वो क्या कह रहा है, तो एक्चुअली पनिंग क्या होता है कि आप वर्ड प्ले करते हो एक टाइप का, जिसमें एक वर्ड के आप मल्टीपल मीनिंग्स निकालते हो, एक जोक काइंड ऑफ जोक होता है। तो वो कहता है कि ही नोट्स एन एब्सेंस ऑफ कॉमेडी, ने इवन ऑफ आयरनी एंड फिलोसफिकल कंटेम्पलेशन इन मैकबेथ। तो उसको ये सब की एब्सेंस दिख रही है, द प्ले बीइंग होली अ प्योर ट्रैजिक। ओके, सो ही सेज कि जो इंटेलेक्चुअलिज्म की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको आयरनी नहीं है, फिलोसफिकल कंटेम्पलेशंस नहीं है अकॉर्डिंग टू कोलरिज इन मैकबेथ, जो कि आपको देखने को मिलती है इन हैमलेट। सो व्हाट ही सेज दैट मैकबेथ इज imagination, appeals to the passion via imagination. Okay, then there is Coleridge. He defends, we have discussed this. Unlike Coleridge's stress on imagination, De Quincey interprets in Macbeth strife of mind, and one that is greater than that in his wife. So what De Quincey interprets in Macbeth? The strife of mind. Okay, next, Coleridge had compared Macbeth to Hamlet and cite differences, whereas A.C. Bradley compares the two plays in terms of their likeness. He cites the fact that Shakespearean tragedy has a special tone or atmosphere of its own, quite perceptible, however difficult to describe. Macbeth is marked by darkness or blackness. With regard to Lady Macbeth, he says that she is the most commanding and perhaps the most awe inspiring figure that Shakespeare drew. He says of her, she helps him but never asks his help. She leans on nothing but herself. She is marked by courage and force of will. Terry Girton interprets Lady Macbeth in the following manner. Like most of Shakespeare's villains, Lady Macbeth is a bourgeois individualist for whom traditional ties of rank and kinship are less constitutive of personal identity than mere obstacles to be surmounted in the pursuit of one's ambition. Okay, in the pursuit of one's ambition. तो ये उनका है, अकॉर्डिंग टू इगल्टन द रियल हीरोइंस ऑफ द प्ले आर द विचेस. Okay, so these were the some critical comments on Shakespeare. Now we will discuss important quotations. So first is, when shall we meet again, in thunder, lightning, or in rain? When the hurly burly is done, when the battle is lost and won. So these are the lines said by witches. Okay, another important quotation from the play is, fair is foul and foul is fair, and again said by witches. Then there is, it is too full of the milk of human kindness to catch the nearest way. Lady Macbeth is saying this about her husband, that is, he is too kind. To catch the nearest way means nearest way he is here is to he is she is talking about killing of King Duncan. So murder of King Duncan. So she is talking about her husband, and she says he's full of human kindness. Okay. With all great Neptune's ocean, wash this blood from my hand. So Macbeth is saying to his wife that this blood represents here the guilt. His feeling, the guilt he is feeling after the murder of King Duncan. Okay, so life is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. Macbeth says these lines after he hears the news of his wife's death, his wife's suicide. He says these lines कि life is meaningless, life is nihilistic view is given in these lines. कि life is meaningless, and when it is a tale told by an idiot full of sound and fury, signifying nothing. So, come you spirits, unsex me here. So, Ladies Macbeth, very famous line, unsex me here means she is calling on evil spirits here to take away her feminine traits. Okay, feminine traits, because she wants to subvert the characteristics of a typical woman, because she thinks that only by adopting male characteristics a woman can gain power. Okay, then there the next is, a little
a little water clears us of this deed. Lady Macbeth says this in Act Second, and later on, what she says, all the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. So, what she means here is that in the beginning, Lady Macbeth suggests that it won't take much for their conscience to be cleared after Duncan's murder, because a little water will clear matlab a little water will clear the blood of their hands. But what happens is she realizes this thing, that nothing could remove the feelings of guilt. All the perfumes of Arabia will not sweeten this little hand. So she loses her mind, she becomes mad, and उसको भी क्या होता है बार बार she keeps seeing blood in her hands. Okay, so these were the quotations. आई होप आपको सब समझ आया होगा अभी तक। और अगर आपके कोई सजेशंस हैं या कोई भी आपके क्वेरीज हैं या क्वेश्चन हैं, प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दो, अगर नहीं अच्छी लगी तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ओके, एंड share this video with your friends also, and if you haven't subscribed yet, please subscribe to the channel All for Literature. Thank you for watching.